Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. And today I'm going to upload the video on spreadsheet software. It's a smart work on the practicals classes from page number 24 to 34. I have already uploaded all the practicals one by one, but through this video you'll get the practical work and the procedure, that how if the practicals are included in your examination and you need to write down the procedure, then how you can just write down the proper procedure in bullets or in a short, you can say short and precise way. So let's move ahead and find out that what is basically in it, and I will just start from the definition. First of all, that the number one is that what is the purpose of the using spreadsheets. Is the answer is spreadsheet is a tool that is used to store data, manipulate data and analyze data. And after that, question number two is what is the structure of the spreadsheet, that what type of page spreadsheet has. Like I just want to show you किस टाइप का पेज होता है स्प्रेडशीट का. हेयर इज इन एक्सेल मैंने खोला है यहाँ पर, आप यहाँ से देख सकते हैं. अब स्प्रेडशीट्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर एक्सेल हेयर. एक्सेल इज द second component of Microsoft Word, sorry, Microsoft Office. Microsoft Word is the first component, the second important component is the Microsoft Excel, and the third one is your PowerPoint. And many other components are here in Office, but mostly we use these three. So here you will find out the sheet, complete sheet here. यहाँ एक complete आपको sheet मिल जाएगी. I'm just going to explain in Urdu now. यहाँ एक आपको ये जो box होगा इसको हम cell बोलते हैं, and here you can see the columns, and यहाँ पर ये जो है वो rows हैं. अगर आपको किसी भी cell का address मालूम करना है तो you will click on that cell and you can find out the cell address. यहाँ पर एक name box के नाम से एक आपके सामने एक बार आएगी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसे D6. मीन्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द कॉलम हमारा D है एंड द रो इज 6. सो वी मेक द एड्रेस लाइक दिस कि हम उसको D6 बना देते हैं यहाँ पर. तो कॉलम्स एंड रोज जो है इससे बन के हमारी शीट बनती है. और हेयर यू कैन सी 3 शीट्स, नंबर 1 2 3, और वी कैन ऐड मोर शीट्स फ्रॉम हेयर एंड वी कैन रीनेम द शीट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, एंड यू कैन जस्ट डू वट एवर यू वांट. लाइक इंग्लिश की अगर हमने बनानी है तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज द वे टू ऐड द मोर शीट्स एंड डिलीट मोर शीट्स, एंड यू कैन जस्ट रीनेम द शीट्स एज वेल. और ये जो मेरे पास राइट नाउ आई हैव 2007, बट अकॉर्डिंग टू द बुक 365 जो है वो वर्क करेगा. मेरे पास फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं है. सो इसके अंदर भी वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो हमारे 365 के अंदर हैं. सो दैट इज़ आई एम जस्ट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स थ्रू दीज and in an easy way. So this is the layout of the structure. आपको नज़र आ गया होगा the what kind of structure we have, and the same bars we have, but the little bit change is here. Like Office tab is not in the Microsoft Word, but here you will find out. And formula is also here. The most important thing is formula. If you want to apply formula, then you can use this bar as well, and from Home tab as well you can just apply the things. And if you know the procedure and the format of the formula to insert, you can do by typing and manually. So this is the sheet, and this is the structure of the Microsoft spreadsheet. So data in spreadsheet is organized in series of the rows and columns and can be searched, stored, calculated, and used in the variety of charts and graphs you can add. Define the Google Sheet. Google Sheet क्या चीज़ है? Google Sheet के बारे में मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, बट here I am just going to tell you again that Google Sheets are online spreadsheets हैं. ये कब काम आती हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो Google Sheet के थ्रू दे आर अर्निंग. और किस तरीके से कर रहे हैं, जस्ट लाइक उनको कोई भी असाइनमेंट मिलती है कि उन्होंने टॉप जो है वो 200 जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, उनके लिंक्स और उनका नेम के साथ एक पूरी शीट बनानी है, ऑनलाइन बनानी है. तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम क्या है? गूगल शीट है, जिसके ऊपर वो तमाम डाटा को जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं. और इससे फ़ायदा क्या होता है, दे कैन जस्ट सॉर्ट द डाटा लाइक इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड आफ्टर दिस दे कैन जस्ट यूटिलाइज दिस अकॉर्डिंगली. और उस चीज़ को अगर उन्होंने A to Z नेम को अरेंजमेंट से करना है तो वो भी कर सकते हैं, रैंकिंग वाइज करना है वो भी कर सकते हैं, और सबसे डाउन पे जो चीज़ है उसको टॉप पे लेके आना है तो उस तरीके से भी उसको मैनेज किया जा सकता है. एंड द पीपल आर
using Google Sheet for many purposes, and they feel comfortable while they use such kind of softwares. And after that, what other tasks we can perform through the Google Sheet? It allows collaboration, and multiple users can edit and format file in real time. Any changes made to the spreadsheet can be tracked by the revisionary history. And describe briefly about the MS Excel. क्या चीज़ है? It is an application software developed by Microsoft for Windows, Mac OS, and Android and iOS, you can say. And after that, what are the functions of the spreadsheet? अब spreadsheet जो है Excel हमारा करता क्या है? Excel is used to perform the calculations using multiple formulas, and the multiple worksheets in Excel are useful when working with a large amount of data. The data can be converted into chart की form में. You can display graphs and tables as well. Number 6, font. ये एक बहुत ही शॉर्ट सी टर्म हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर. वी आर जस्ट यूजिंग लाइक व्हाट इज़ फॉन्ट. एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट नंबर इज़ कॉल्ड फॉन्ट. नॉर्मली पीपल ऑलवेज डिफाइन द फॉन्ट इज एज अ स्टाइल, कि फॉन्ट जो है वो शायद राइटिंग का स्टाइल को बोलते हैं, बट नहीं, हम फॉन्ट बोलते हैं किसी भी टेक्स्ट को जो आपने एंटर किया हो, दैट इज़ कॉल्ड योर फॉन्ट. दैट इज़ इफ नो मैटर इज अ नंबर और एनीथिंग यू आर एंटरिंग जिसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, दैट इज़ कॉल्ड फॉन्ट. सो नंबर 1 प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं यहाँ पर. So the number 1 practical is, it's a procedure, practical procedure, changing font size and font color. This is very basic, and you can say the basic task we do in all the programs, but I'm just going to tell you that again कि आपको थोड़ा idea, जिन लोगों को नहीं idea उनको idea हो जाए. First of all, you need to type something in the cell. Select cell by clicking on another cell. Choose writing style from the format cell and change size and color as well. अब यहाँ पर selection का method थोड़ा change है. Like हम लोग अगर Microsoft Word में काम करते हैं तो वी डू थिंग्स लाइक दिस कि हमने कुछ भी ऐसा टाइप किया है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सिलेक्शन हो जाएगी. अब यहाँ पे आई हैव रिटन द पीके एंड आई जस्ट वांट टू चेंज द राइटिंग कलर, बट कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज द सेल इज नॉट सिलेक्टेड. द मेथड टू सिलेक्ट द सेल इज यू जस्ट क्लिक समवेयर एल्स एंड देन अगेन ऑन द रिक्वायर्ड सेल. यहाँ पर आप क्लिक करें और इसके बाद आप अप्लाई करें. देन नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज हियर. यहाँ से हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन. यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ लाइक ये पी के हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है. सो इस तरीके से जो है वो आप इसका फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट है आपके पास, पी के इज फॉन्ट, एंड वी आर जस्ट अप्लाइंग दीज 3 थिंग्स. और बहुत सारी चीज़ें और भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑल दीज थिंग्स यू कैन अप्लाई. और अगर आपको लगता है, ये मैं नेक्स्ट में बताती हूँ आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में. तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा जो कि आपके लिए अभी ईजी हो गया होगा. वैसे ऑलमोस्ट ये सबको पता होता है इसके बारे में, बट फिर भी रिपीट करना ज़रूरी था. प्रैक्टिकल नंबर 2 इज़ ना बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. किस तरीके से हम करते हैं, लाइक हमने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद वी आर जस्ट गोइंग टू चूज द शॉर्टकट की. हमारे पास शॉर्टकट कीज़ क्या है, ये इन वर्ड्स के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे. लाइक अगर आपको करना है कंट्रोल, अगर आपको बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी करेंगे. आपको अगर जो है वो आपने इटैलिक करना है तो यू विल चूज़ कंट्रोल आई. अगर आपने यू करना है तो यू विल चूज़ लाइक दिस. उसके बाद आपके पास यहाँ पर साइड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डबल अंडरलाइन की ऑप्शन भी आ जाती है. यू कैन डू लाइक दिस. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल नंबर 2 दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम द होम टैब, एंड डेफिनेटली वी हैव द शॉर्टकट कीज़ एज वेल, एंड वी हैव द मेन्यू. प्रैक्टिकल नंबर 3, अगर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरीके से शॉर्टकट से करना तो यहाँ से करेंगे. डबल अंडरलाइन के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. दिस इज़ द प्रैक्टिकल नंबर 4. एंड 5 इज़ अ बैकग्राउंड कलर इन बॉर्डर. सो वी चूज़ इट लाइक बॉर्डर किस तरह से हमने करना है या हमने बैकग्राउंड कलर कैसे करना है. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये बकेट मौजूद है. यू कैन जस्ट चूज़ इट. और आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने अगर प्रिंट करना है इस पेज को, तो इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिंट द पेज लाइक दिस, यू हैव रिटन एवरीथिंग विदाउट applying border, you can't do it. First of all, you need to select the thing, like पूरी शीट को हम यहाँ से select करेंगे, and after that you have one option here. यहाँ पर आपके पास borders की बहुत सारी option आ जाती हैं. like अगर आपने इन तमाम का bottom border करना है तो हम यहाँ से bottom border पे करेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं, you can see a line, and here you can choose from the left border, right border. हमें क्या चीज़ करनी है, we need to do, हमें पूरी शीट को select करना है, and we just want to apply like all border. तो
इस तरीके से क्या होगा, इफ़ यू आर जस्ट मेकिंग अ शीट तो ये तमाम चीज़ें हाईलाइट होगी आपकी, उसमें लाइंस कॉलम एंड रोज के साथ आपके पास प्रिंट होगा. सो इन दिस वे यू कैन जस्ट अप्लाई द बॉर्डर्स एंड मल्टीपल बॉर्डर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इट, मोर बॉर्डर्स यू कैन सी. यहाँ पे आपके पास और भी बहुत से बॉर्डर्स आ सकते हैं. ये देखें आपके पास इस फॉर्म में आपने किस तरीके से लेना है, आपने फॉन्ट का कलर क्या करना है, आपने फिल क्या करना है. यू कैन जस्ट चूज़ फ्रॉम हेयर एंड फिल इफेक्ट के थ्रू जो है वो आप कोई भी यहाँ पे डबल कलर चूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली. तो इस तरीके की ऑप्शंस जो हैं वो भी आपको दी जाती हैं. यू कैन चूज़ एंड यू कैन मेक योर पेज. जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक सेल को किया है, अगर आप पूरे इसको करेंगे तो तब भी आप इन तमाम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं. लाइक दिस, आपने अगर फिल करना है तो आपको यहाँ से अगर ब्लू कलर है यू कैन चूज़ इट एंड यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस. पूरी शीट आपकी जो है वो ब्लू हो जाएगी. सो इन दिस वे यू कैन डू इट. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से बकेट के थ्रू भी कर सकते हैं, मोर कलर से भी जा सकते हैं. मतलब इट्स अप टू यू विच मेथड यू फील दैट दिस इज़ द ईजी मेथड. यू कैन जस्ट डू एंड अप्लाई हियर. आफ्टर दैट यहाँ पे ये प्रैक्टिकल नंबर 5 डन किया है अभी हमने, और नेक्स्ट में हम चले जाते हैं. ये इसका प्रोसीजर बता दिया. 6 पे डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन. अलाइनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है आपके पास, इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट लाइक लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. एंड ओरिएंटेशन इट रेफर्स द फिजिकल पोजीशन और द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. ये एक इसकी डेफिनेशन है. बट व्हाट इज़ द मेथड टू डू इट, लाइक आपको करना किस तरह से है. आप इसको दोबारा से हम चले जाते हैं उसके ऊपर एक्सेल पे, और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं. जैसे मैंने पीके टाइप किया, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी सेल को एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट अप्लाई फ्रॉम हेयर. यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगी. ये देखिए सेंटर में चला रहा है इस तरीके से. मतलब प्रॉपरली जहाँ पे भी आप करना चाहोगे आप इसको कर सकते हैं. तो इस तरीके से यहाँ से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो है वो सेटिंग यहाँ पर हो सकती है. अब ओरिएंटेशन में आपने इनको वर्टिकल टेक्स्ट करना है तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास. अगर आपने रोटेट टेक्स्ट अप करना है इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपने किस तरीके से टेक्स्ट को लेना है. एंड दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन, और इसको हम बोलते हैं. और आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा उसका अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन. अलाइनमेंट इज़ द पोजीशन ऑफ योर टेक्स्ट लाइक सेंटर, लेफ्ट, राइट, एंड ओरिएंटेशन मीन आपने पूरी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दी टेक्स्ट की थ्रू बाय यूजिंग दिस ऑप्शन. तो ये वाली जो चीज़ है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing that differentiate between the orientation and alignment. So let's move ahead and find out the practical number 6 is done now. एंड वर्किंग विद द लॉन्ग टेक्स्ट है कि आपने कोई लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है. आपने कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको एक ही सेल के अंदर एडजस्ट करना है. जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, मुझे आगे वाले सेल में नहीं जाना. पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, तो मुझे आगे वाले सेल में नहीं जाना. मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन आई विल गो टू द टेक्स्ट रैप. ये देखिए इस तरीके से जो है वो आप टेक्स्ट रैप के थ्रू एक ही सेल के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इज़ द वे टू एडजस्ट इट. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आल्ट और एंटर की के साथ भी आप इसको कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर करूँगी और उसके बाद मैं आल्ट और जो है वो एंटर की के साथ में इसको ये इस तरीके से देखें, आल्ट और एंटर प्रेस किया है तो वो एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो गया है. सो दिस इज़ द वे टू वर्क विद द लॉन्ग टेक्स्ट. Number formatting, what are the adjustment of decimal points? Places. Excel has various options for formatting numbers. You can specify the number of decimal places, add commas to separate long number into thousands, place a currency sign in front of the number as percentage. हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हमें नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करना है. लाइक हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर की है. हेयर वी आर गोइंग टू एंटर द वैल्यू. यहाँ पर मेरा नाम लॉक ऑफ है तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको पहले तो इसका साइज़ बड़ा कर लेती हूँ ताकि सबको नज़र आ जाए इस तरीके से. यहाँ पे मेरे पास, बल्कि इनफैक्ट हम यहाँ पे करते हैं तो मैं इसको जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ दिस 25. लाइक आई एम इंक्रीजिंग इट. एंड यहाँ मैंने जब इंक्रीज़ कर लिया हुआ तो यहाँ पे आपके पास एक जनरल की ऑप्शन आती है. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू क्लिक हियर अपनी करेंसी लेनी है, डॉलर का साइन आ गया आपके पास इसमें. और आप यहाँ से लॉन्ग आपने डेट इंसर्ट करनी है आप वो कर सकते हैं, नंबर इंसर्ट करना है आप वो कर सकते हैं. लॉन्ग में ये इस तरह से जैसे डेट लगाई है मैंने हम वो कर सकते हैं. मतलब एनीथिंग यू कैन जस्ट चूज़ फ्रॉम हेयर. आपने फ्रिक्शन लिखनी है आप
कोई भी चीज़ करना चाहते हैं यू कैन, साइंटिफिक तरीके से आपने लिखना है तो यू कैन डू इट। मुझे यहाँ पे अगर डॉलर साइन एडजस्ट करना है और ये इस तरीके से मेरे सामने देखें डॉलर साइन एडजस्ट हो गया है, यहाँ से भी मैं इसको कर सकती हूँ। मेरे पास अगर यूरो की है तो मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगी, यूरो का साइन आ जाएगा आपके पास। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो है डेसिमल प्लेसेस। ये मेरे पास 0.00 जो है वो डेसिमल, मतलब आपके पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ आपके पास पहला जो है वो है इंक्रीज़। अगर आप करेंगे तो आपके जो पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे जितने भी आप चाहेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू डिक्रीज़ इट यू कैन जस्ट डू इट, कि आपको सिर्फ एक ही चाहिए तो आप इस तरीके से, और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट डू दिस लाइक इस तरीके से जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपने परसेंटेज का साइन लगाना है, आपने कॉमा लगाना है, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन जस्ट यूज़ बाय दीज ऑल थिंग्स। ये नंबर का आपके पास बॉक्स है, यू कैन डू इट थ्रू ऑल दिस। ओके, तो इस तरीके से जो है वो हम अपने नंबर को, डेसिमल पॉइंट्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हेयर इज़ अ प्रोसीजर, अगर आपको लिखने के लिए आता है यू कैन डू लाइक दिस। नंबर ग्रुप ऑन द होम टैब, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट टू सेलेक्ट द करेंसी फॉर्मेट, चूज फ्रॉम द परसेंट स्टाइल एंड कॉमा स्टाइल। Number group has also the button to increase and decrease the points in decimal places. Click arrow next to accounting number format and select more accounting formats. And number formatting decimal point मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको रीड कर देती हूँ. That format cells dialog box appears. Select symbol as PKR, click on dollar sign and euro, and click on the increase and decrease the decimal points by increase or decrease options. उसके बाद आपके पास है what is meant by the cell style and how do we apply these options. We can use the 365 pre-designed cell rather than formatting cell manually. Cell style are used to quickly add professional level formatting to different parts of the worksheet like title and the headers. अच्छा, अभी हमें cell styles को apply कैसे करना है. Here is a practical procedure that select the cell where you want to apply formatting. Click the cell style button in the styles group on the home tab and live preview of the format is displayed. आपने सबसे पहले क्या करना है, आप चले जाएंगे अपने यहाँ पे प्रोसीजर देखेंगे कि आपने where you want to apply the formatting. फिर आपने इसका जो है वो like this, हम यहाँ पर चले जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे सेल स्टाइल की ऑप्शन आती हैं. ये देखिए, ये जितने भी आपके पास सेल में, इसमें राइटिंग स्टाइल्स भी चेंज हुए हैं, कलर्स भी चेंज हैं और फॉन्ट कलर भी चेंज है. आपको जो स्टाइल चूज़ करना है, लाइक आपने बैड करना है तो आपका राइटिंग भी वही आएगा जो उसके अंदर मौजूद है. अगर आपने यहाँ पे चले गए हैं एंड यू वांट टू चूज़ लाइक दिस, ये टाइटल चूज़ करना है तो आपका टाइटल का राइटिंग स्टाइल भी वही आएगा जो उस बॉक्स के अंदर है, इन कलर भी आएगा. सो यू कैन जस्ट एडजस्ट डायरेक्टली, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपने यहाँ पर 60 लिखा है तो वही स्टाइल आपके सामने आ जाएगा. मीन्स यू कैन जस्ट क्रिएट द थिंग्स लाइक दिस. इसमें से कोई भी चीज़ आपने चूज़ करनी है, यू कैन डू इट एंड यू कैन अप्लाई इट. सो ये आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आपके पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से फॉर्मेट की हुई एक चीज़ मौजूद है. तो ये हमारा पेज नंबर 24 से 33 तक जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं और बहुत ही सिंपल से हैं, फार्मूलाज तो आगे जाके आएंगे इंशाल्लाह ताला. तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और आप अगर इसको रेपिटेशन में देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड more solutions and it will be convenient for you. Thank you so very much and Allah Hafiz.